let's talk about the new era of jobs. Basically, whenever we are talking about different types of jobs like accounting or computer jobs, then one thing comes to our mind कि जो कंपनीज हैं हाउ दे आर वर्किंग, क्या वो लोग भी इसी वे से काम करती हैं, वट एवर वी फील्स that we have to be an accounting professional, we have to be IT professional, then we'll get the job. Let's talk about the real opportunities available in the market. So whenever we are talking about the real opportunities in the market, we should have to discuss about the big corporates, because if we are talking about the small companies, तो छोटी companies में तो obviously जो job profile है, जो job description है, वो उसी तरह की होती है, just like the same whatever we are discussing in our routine videos or we are discussing it इन द मार्केट. अगर आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारे लोग आपको उस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन बता देते हैं एंड वी फाइंड इट just matching to it. But talking about the big corporates, there is somehow different. So today we will discuss about them so that you can go for the good jobs, you can go for the jobs in corporates, because we have already made tie-ups with many companies, so we analyzed their system and then we are interested to guide you accordingly. So that is called, basically let's talk about that, that is called ERP based working. Now a time whenever we are talking about a company, a big corporate, the system is ERP. ERP means for what? This is a backbone of the modern businesses. If we are talking about the latest era of business concept, तो latest era of business concept में ERP based working चल रही है. Everywhere you will see that every company is converting itself into a ERP based software. Now this ERP based software is what? Basically we will discuss about these today. What are its benefits? What are the career opportunities available for you? How this will streamline the complete business operations, and then how it will improve the efficiency of a business. किस तरह से business की efficiency को ये बढ़ा देती है, जिससे कि आप लोगों को इसमें अच्छी जॉब, अच्छा प्रोफाइल, अच्छी सैलरी अवेलेबल हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. Starting with, first of all, we have to go for the understanding what is ERP, what is actually it is, and why it matters. So let's talk about the meaning first. Talking about the meaning, the three words are there. ERP, that means for E means for enterprise, R means for resource, and P means for planning. What is enterprise? Enterprise means a big organization, large organization which have various departments and various types of operations with them. कई तरह के काम हैं उनके पास. Talking about resource, resource means for the whatever the resources available with them to work out, जो काम करने के लिए उनके पास जितने भी resources available, जिसमें first of all matters is finance, how much finance is available with them. So finance is a big matter. Material to be used for productions, human resources, because this is also a big resource, without this nothing can happen, machinery, marketing, and we will find number of other factors also, number of other resources also. Now we have to go for the planning of these resources in such a way so that we can make optimize use of it, best use of it. इसका प्रॉपर प्लान्ड यूज करना है, इसको एक प्रॉपर तरीके से इसका यूज करना ताकि ये हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे पाए, सो दैट आवर एफिशिएंसी वे इंक्रीज अप टू अ गुड लेवल. Minimize the efforts, maximize the results, or we can say minimize the cost and maximize the profits. This is the economics rule. तो वो इकोनॉमिक्स का रूल यहाँ पर लगता है. इसमें हम लोग थ्री वर्ड्स को जोड़ देते हैं. जब एंटरप्राइज मीन्स बिग ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज इन सच ए वे, इन सच ए प्लान्ड वे दैट दे कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर. नाउ हाउ इट कैन बी डन विद द सॉफ्टवेयर, दैट इज द मेन थिंग. Let's talk about this ki how it will be done with the software, because this is not a software normally this is to be done by making a good planning, but here we are talking about that there are number of softwares available in the market which helps us to do that. Now what are the benefits of these softwares? First of all, they eliminate the complete bifurcations, because होता क्या, जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, उनका एक परचेज डिपार्टमेंट है, उनका एक सेल डिपार्टमेंट है, एक उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक उनका ह्यूमन रिसोर्स HR का डिपार्टमेंट है, एक उनका मटेरियल प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, एक उनका
अपना जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्शन प्लानिंग का डिपार्टमेंट हो जाता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो जाता है, कोस्टिंग का डिपार्टमेंट, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट्स। तो वो हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, दे आर नॉट कोरिलेटेड विद द अदर वन नॉर्मली। कई बार कई जगह पे काम डुप्लीकेट हो जाते हैं, जो फर्स्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो सेकंड डिपार्टमेंट को नहीं पता होता, सेकंड डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो थर्ड डिपार्टमेंट को नहीं पता। तो डिफरेंसी जो आती है, जो डिफरेंशिएशन आ जाती है उनमें, जो वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता आपस में, उसको फिनिश कर देता है कौन? ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर। वो कंसिस्टेंसी ले आते हैं ताकि एक जो कर रहा है वो दूसरे को भी पता लग जाए और दूसरा जो कर रहा है तीसरे को भी पता लग जाए। उसके लिए काफी कुछ पहले से प्लान होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। इससे जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि अगर हम लोग डुप्लीकेसी खत्म कर देंगे, अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे, अगर हम सिस्टमेटिक वर्किंग करेंगे, तो होगा क्या? उससे टास्क सारे काम जो है ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उसमें गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इससे हमारे सामने क्या आएगी? रियल टाइम पिक्चर आ जाएगी, जो एक्चुअल पिक्चर है वो सामने आ जाएगी। उससे हम एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे और हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी, इससे वो काफी रिड्यूस हो जाएगी और वेस्टेज के तो चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कोलेबोरेशन जो है वो हो जाती है, सारे डिपार्टमेंट्स एक यूनिफाइड सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये नहीं कि यहाँ पर टैली चल रहा है, दूसरे में बिजी चल रहा है, या कोई किसी का तरीके से काम कर रहा है, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है। सारे अपने अपने तरीके से काम नहीं कर रहे, सभी को एक ही सॉफ्टवेयर में काम करना है, एक ही सिस्टम में काम करना है, उसी में उनको राइट्स मिले हैं, उनको ड्यूटीज मिली हुई है, सब कुछ पहले से एलोकेट होता है, उससे टीम वर्क हो जाता है प्रॉपर। जो रिलेशनशिप है हमारे कस्टमर के साथ वो भी बढ़िया होती है। रीजन बीइंग कि हम उसमें हर चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें हम इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, उसमें उनकी सेटिस्फेक्शन को देखा जा सकता है, उनकी लॉयल्टी को बढ़ाया जा सकता है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, उन सभी को भी हम फुलफिल कर सकते हैं, बिकॉज वो सब कुछ पहले ही प्लान हो जाता है कि हमने ये काम करना है, वो करना है, एवरीथिंग इज प्री प्लान। देन जो हमारी पूरी की पूरी सप्लाई चेन है वो भी बड़े सिस्टमेटिक वे से चलने लग जाती है। हमारा जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री हम स्टॉक को कहते हैं, तो हमारा जो स्टॉक है वो भी हमें पता होता है कब कितना स्टॉक कब अवेलेबल करवाना है, रॉ मटेरियल कब परचेज करना है, कि किस तरह से हमारा उसमें पैसा बच सकता है, किस तरह से हम रॉ मटेरियल को परचेज करके आगे सप्लाई करेंगे, उसमें भी हम लोग किस तरह से अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड टू बी डन इन ए सिस्टमेटिक वे बाय सॉफ्टवेयर। तो एक डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो दूसरे को पता होता है, प्रोक्यूरमेंट करना, परचेज करना, लॉजिस्टिक मतलब जो हम लोग उसको सप्लाई करते हैं आगे फर्दर, ताकि डिसरप्शन ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या स्कोप है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स का आज की डेट में, किस तरह से जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो बड़े बिजनेसेस हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, बिग कॉर्पोरेट्स में क्या सिस्टम चल रहा है। देन हम लोग उसी में जो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें हमारा करियर किस तरह का हो सकता है, कैसे हम लोग उसमें अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको ध्यान से समझे, और अगर आप लोगों के पास कोई भी इसमें क्वेरी है तो आप लोग हमें क्वेरी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।